وہ اسے لے کر لاؤنج میں آ گیا. فضول باتیں بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ پر نظر کیوں رکھ رہے ہو. دیکھو آج میں گھر والوں سے چھپ کر یہاں صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو سکے اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی. آیت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو زاویہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں. مزید سوال کر کے مجھے مشکل میں مت ڈالو. بس اتنا جان لو کہ تمہاری عزت کی حفاظت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے. زاویہ نے سنجیدگی سے کہا. کیوں؟ میری عزت کو کس سے خطرہ ہے اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ آیت کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی. میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا. بس زین سے دور رہنا کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. آیت سے نظر چراتے ہوئے زاویہ نے اسے خبردار کیا. اور تم کیسے آدمی ہو جو ایک لڑکی پر نظر رکھ رہے ہو؟ میرے خاندان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں. آیت نے اس کی بات سمجھے بغیر غصے سے کہا. تم کچھ نہیں جانتی اس لیے جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو. اور ایک بات یاد رکھنا ہے اگر وہ زین مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو میں اس کی جان لے لوں گا اور زین کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی. زاویہ نے اسے دھمکی دی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. تم میرے کزن کو مارو گے؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ اور میں جس سے مرضی چاہے بات کروں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم میرے باپ نہیں ہو جس طرح حکم چلا رہے. وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے بولی تو زاویہ نے اطمینان سے مسکرایا. تمہارے باپ نے ہی تمہاری منگنی بچپن میں میرے ساتھ کروائی تھی اس لیے اگر تمہیں اپنے باپ کے فیصلے کا ذرا سا بھی خیال ہے تو میری باتوں پر عمل کر لو. زاویہ نے آیت پر بم پھوڑا تھا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. کون سی منگنی اور کب ہوئی ہماری منگنی؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسے لگا کہ زاویہ کا ذہنی توازن خراب ہے. تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ رکو میں تمہیں تصویریں دکھاتا ہوں. زاویہ نے اس کے قریب آ کے فون میں تصویر نکالتے ہوئے اسے فون پکڑایا تو وہ حیرت سے اس میں نظر آتے اپنے بچپن کو دیکھنے لگی. وہ 5 سال کی تھی اور وہ 10 سال کا. وہ اپنے بچپن کو پہچانتی تھی مگر زاویار کو پہچاننے کے لیے اس نے نظریں موبائل سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پہچان گئی کہ تصویر میں دکھائی دینے والا بچہ زاویار ملک ہی ہے. اس کے قدم لڑکھڑائے تو زاویار نے اسے تھام لیا. تو تم مجھ پر اس لیے نظر رکھ رہے ہو کہ کہیں میری شادی کہیں اور نہ ہو جائے؟ اس نے اپنی بات پر زاویار کی مہر لگانا چاہی تو اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس زاویار نے اسے دیا اور بولا نہیں اس کے لیے مجھے تم پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے دل میں بستی ہو اور تمہیں میرے نصیب میں ہی لکھا گیا ہے. خیر ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو. اس کے پاس بیٹھتے ہوئے زاویار نے اسے نصیحت کی مگر وہ حیرت سے اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہی. تم کون ہو؟ بابا نے میری منگنی تم سے کیوں کروائی؟ تم ان کے کیا لگتے تھے؟ کئی سوال تھے جو اسے زاویار سے پوچھنے تھے. وہ ہمارے پڑوسی تھے. کئی سالوں کا ساتھ تھا اور جب تم پیدا ہوئی تو میرے بابا نے اسی وقت تمہیں میرے لیے مانگ لیا تھا لیکن تمہارے مما بابا نے انتظار کروایا اور جب تم 5 سال کی ہوئی تمہاری منگنی ہو گئی. میرے بابا کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہارے بڑے ہونے کے انتظار میں تمہارے ماں باپ تمہارا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں اس لیے انہوں نے جلد بازی کی مگر میں نے اس جلد بازی کے رشتے کو بھی دل سے قبول کیا. کئی سال گزرنے کے باوجود تم مجھے اچھی لگتی ہے اور میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں. ہاں لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں. تمہاری پسند میرے لیے اہم ہے لیکن زین سے دور رہو. اسے سب کچھ بتاتے ہوئے آخر میں زاویار نے فیصلہ اس پر چھوڑا جبکہ وہ بس زاویار کو ہی دیکھے جا رہی تھی. اپنی زندگی کے اس باب سے تو وہ ہمیشہ لا علم رہی اور اس کی یادداشت نے بھی ان لمحات کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھا تھا اس لیے وہ کبھی جان ہی نہیں پائی کہ بچپن میں اس کی منگنی ہو چکی ہے. تو جب میرے مما اور بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کبھی دیکھا کیوں نہیں؟ اس نے بولنے کی کوشش کی. زاویار نے جواب دیا کہ جب تمہارے مما بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اسلام آباد میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا تھا لیکن جب مجھے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو میں فوراً آ گیا. تمہاری امی کے جنازے میں وہیں تھا لیکن تم اس وقت اتنی غمگین تھی کہ میں نے اپنا تعارف کروانا مناسب نہیں سمجھا. بات کرتے ہوئے زاویار نے نرمی سے آیت کا نام پکارا تو آیت اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. تمہارے بابا زندہ ہیں. وہ اس ایکسیڈنٹ سے زخمی ہوئے تھے لیکن وہ بچ گئے تھے. جیسے ہی زاویار نے کہا تو آیت کو لگا کہ اس کے ارد گرد کی ہر شے خاموش ہو گئی ہے جیسے کسی نے آسمان کو زمین پر گرانے کے بعد اسے واپس اپنی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. وہ حیران سی زاویار کو دیکھے گئی. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بابا زندہ ہیں؟ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا تو آیت کی آواز کپ کپا گئی. ہاں صدیقی انکل زندہ ہے اور انہی کی اجازت سے میں تمہاری زندگی میں آیا ہوں. زاویار نے بتایا تو وہ بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی. اس دن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بابا کی ڈیڈ باڈی اس قدر خراب تھی کہ اسے فوراً دفنانا پڑا اور انہوں نے ہمیں قبر بھی دکھائی تھی تو وہ سب جھوٹ تھا مگر بابا نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ انہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر کہ میں کتنی اکیلی رہ گئی ہوں؟ انہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زندہ ہوتے ہوئے مجھے کیسے یتیم کر سکتے ہیں؟ زاویار مجھے ان سے ملنا ہے. مجھے ابھی ان کے پاس لے کر چلو پلیز. وہ بے خودی کی کیفیت میں کہتے ہوئے زاویار کو جھنجھوڑ گئی. ہم ان سے ملنے جائیں گے لیکن تم اپنی طبیعت خراب مت کرو اور انکل کافی بیمار رہے ہیں اسی لیے انہوں نے تم سے رابطہ نہیں کیا مگر تم ان کی نگاہوں میں تھی. انہوں نے ان چند سالوں میں تمہاری ہر سرگرمی پر نظر رکھی ہے اور جب میں اسلام آباد سے واپس آیا اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے بھی انہیں زندہ دیکھ کر ایسی حیرت ہوئی جیسے آج تمہیں ہو رہی ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا حادثہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا. وہ قتل کرنے کی سازش تھی اور یہ قتل کرنے کی سازش تمہارے تایا نے کروائی تھی. ہوتی وفا جو خون کے رشتوں میں یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. زاویار نے تو ایک کے بعد ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اسے کسی گہری دلدل میں گھسیٹ لیا تھا. کیا بول رہے ہو؟ تایا نے مما اور بابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا لیکن کیوں؟ آیت رو پڑی. کیونکہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس روز گاڑی کے بریک فیل کیے. ان کا خیال تھا کہ تم بھی گاڑی میں ہوگی لیکن تم بچ گئی اور انہیں
दुनिया दिखावे के लिए तुम्हें अपने साथ रखना पड़ा। जिस रोज़ वो तुम्हें मारकर घर के कागजात पर दस्तखत करवा रहे थे, उस वक्त मैं तुम्हें खिड़की से देख रहा था। मुझे सिद्दीकी अंकल ने कहा था कि तुम्हारी हिफाजत करो, तभी शिफ्टिंग से पहले मैंने इस घर में कैमरे लगवा दिया। तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने थी। लाउंज, किचन, लॉन, हर जगह कैमरे लगे हैं। उसने बताया तो आयत सांस रोके उसे सुनती रही। अब उसे सब बातें समझ आ रही थी। लेकिन बाबा ने मुझे इन कातिलों के साथ कैसे रहने दिया? वो मुझे लेने क्यों नहीं आए अब तक? आयत को बहुत दुख हो रहा था। पहले वो काफ़ी अर्सा बीमार है, फिर जब उन्होंने तुम्हारा पता करवा कर तुम तक पहुंचना चाहा तो मैंने उन्हें रोक दिया। मैं चाहता था कि तुम खुद लड़ना सीखो, खुद को मजबूत करो और अपने दुश्मनों को पहचानो। और तुमने वाकई वक्त के साथ खुद को मजबूत कर लिया। और ये मत समझना कि अंकल या मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। हम पिछले 2 साल से तुम्हारे साथ हैं। जावियार ने उसके दुखे दिल पर मरहम रखना चाहा, मगर आयत का पूरा वजूद कांपने लगा। वो तकलीफ से अपना सर थामे फूट फूट कर रो पड़ी। इन लोगों ने मेरी मम्मा और बाबा को मारा और बाबा ने मुझे इन्हीं के पास छोड़ दिया। मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो रोते हुए बोल रही थी। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम जैन से दूर रहना। वो कई बार उसे जैन से दूर रहने का कह चुका था। क्यों? जैन तो खुद उस वक्त बच्चा था, उसका क्या कसूर है? आयत पूछे बगैर बिना नहीं रह सकी। वो गलत सरगर्मियों में मुलव्विस है और मैं बस तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात का मान रखना। सिर्फ चंद दिन और तुम्हें उनके घर रुकना होगा, फिर मैं जैन को गिरफ्तार करने के बाद तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन अभी मैं अपना असल चेहरा इन लोगों के सामने नहीं ला सकता। जावियार ने बताया तो वो मजीद हैरान हुई। तुम गिरफ्तार करोगे? ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ आम शहरी बनकर रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैन के खिलाफ सबूत चाहिए। वो लड़कियों को बेचने का कारोबार करता है। आयत, तुम उससे दूर रहोगी ना? उसका हाथ थामे जावियार ने मोहब्बत से आयत से पूछा, जबकि वो पत्थर का बुत बनी बैठी थी। आज हर झूठे रिश्ते से पर्दा उड़ गया था और आयत की रूह लहू लुहान हो चुकी थी। धुंधली आंखों से जावियार का चेहरा देखती हुई वो सुन बैठी थी। जावियार ने उसके होठों से पानी का गिलास लगाया, मगर वो एक घूंट भी ना भर सकी। तुम अपने बाबा से बदगुमान मत होना। उन्हें मैंने तुमसे मिलने से रोका था, क्योंकि मैं तुम्हारे ताया और कज़न के खिलाफ सबूत जमा करना चाहता था। ये सब लोग बहुत ही घटिया हैं। उसने आयत को हौसला दिया तो आयत मुर्दा कदमों से दरवाजे की तरफ चल पड़ी। कुछ देर और रुक जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाविया दरवाजे के सामने आया तो आयत ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक हूँ, मैं रास्ते से हटो। आयत, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा और खफा होना बनता है, लेकिन प्लीज़ ऐसी हालत में घर मत जाओ। जावियार ने इल्तिजा की। आयत ने एकदम जावियार से कहा, तुम अभी मुझसे निकाह कर सकते हो? आयत ने जैसे ही पूछा तो उसके अचानक सवाल पर जावियार हैरान हुआ। अभी? हाँ अभी। मुझे बाबा के पास लेकर जाओ, हम वहाँ निकाह करेंगे, फिर मैं आकर इनसे बदला लूँगी। उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। ठीक है, लेकिन तुम बदला नहीं लोगे, हम मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। जावियार ने उसकी हालत के पेश नज़र फ़ौरन बात मानी तो उसे सर झुका लिया। कुछ देर बाद वो एक घर में मौजूद थे, जहाँ हर तरफ दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। दरवाजे पर एक मेल नर्स ने उनका इस्तकबाल किया। आयत अपना तेज़ धड़कता दिल लेकर एक एक कदम उठाते सिद्दीकी साहब के कमरे की तरफ गई। जावियार उसका हाथ थामे हुए था। सिद्दीकी साहब के कमरे पर पहुंचती आयत का दिल धड़कना भूल गया। वो हैरत से बिस्तर पर लेटे उस शख्स को देख रही थी। बड़े हुए बाल, सियाह रंगत और कमज़ोर जिस्म। वो बिलाशुबा उसके बाबा ही थे, मगर वो पहले वाले बाबा से बहुत मुख्तलिफ थे। आयत भाग कर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रो दी। सिद्दीकी साहब भी आज अपनी बेटी को साथ लगाए रोने लगे। बाबा, आपने अपनी क्या हालत बना ली है? आप ठीक हो जाएंगे ना? सारे गिले शिकवे भुलाती हुई आयत को सिर्फ उनकी फिक्र थी। हाँ मेरी जान, तुम्हें देख लिया है, अब तो ठीक होना ही पड़ेगा। उन्होंने इसके सर पर मोहब्बत से बोसा दिया तो आयत ने उनके हाथ अपनी आंखों से लगाए। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। मुझे यही लगता था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे मेरे बाबा लौटा दिए। वो खुशी से रो रही थी। इसमें सारा कमाल जावियार का। उसने ना सिर्फ मुझे संभाला, बल्कि भाई के खिलाफ सबूत भी जमा किए। ये भी पता लगवाया कि वो हादसा नहीं था। वो आदमी जिसने ब्रेक फेल किया, उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया। तुम देखना मेरी बेटी, ये सब लोग बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सिद्दीकी साहब ने कहा तो वो मुस्कुराकर जावियार को देखने लगी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। अंकल, आप इजाज़त दें तो अभी निकाह ख्वाह को बुलाकर आपकी बेटी से निकाह कर लूँ? जावियार ने उसे आंखें दिखाते हुए सिद्दीकी साहब से इजाज़त तलब की। हाँ ज़रूर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही तुम दोनों की शादी हो जाए, उन्होंने कहा। अपने बाबा की बात सुनकर आयत ने सर शर्म से झुका लिया। आयत को तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। वो घर के कपड़ों में ही दुपट्टा सर पर लेकर निकाह के लिए बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया। वो बरसती आंखों से कभी सिद्दीकी साहब को देखती तो कभी जावियार को, जो मुस्कुरा कर उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दे रहा था। कुछ देर बाद जब उनका निकाह हो गया तो जावियार ने मुलाजिम को भेजकर मिठाई मंगवाई और सिद्दीकी साहब को खिलाई। आज से आप आयत के बारे में बेफिक्र हो जाए, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। उसने सिद्दीकी साहब को तसल्ली दी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अब मैं सुकून से अपनी आखिरी सांसें ले सकूँगा, उन्होंने कहा। तो आयत शिकायती नज़रों से उन्हें देखने लगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं अब आपके साथ ही रहूँगी, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। एक तवील मुद्दत बाद बाप का प्यार पाते ही वो अब उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। नहीं बेटा, अभी कुछ दिन तुम्हें वहीं रहना होगा। जब तक आफाक और जैन गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक तुम्हें उसी घर में रहना है। और जावियार भी तो वहीं है, फिर फिक्र की क्या बात, उन्होंने कहा। तो आयत को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। ये लोग दिन रात मुझे यतीम होने के ताने देते थे, लेकिन इनको तो मालूम ही नहीं कि मेरे बाबा जिंदा हैं। वो सोचकर बहुत खुश हुई। हाँ लेकिन तुम अभी उन्हें कुछ नहीं बताओगी। और चलो अब अंकल से मिल लो, रात बहुत हो गई है, वहाँ भी तमाशा लगा होगा।
जावियार ने उसे टोका तो वो सिद्दीकी साहब से मिलकर उन्हें सेहत का ख्याल रखने की तलकीन करते हुए जावियार के साथ बाहर निकल गई। ये मुलाजिम बाबा का ख्याल सही तरह से रख रहे हैं ना? गाड़ी में बैठती उसने पहला सवाल किया। जावियार गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, हाँ मैं इन पर नज़र रखता हूँ। मतलब तुमने यहाँ भी कैमरे लगाए हुए हैं? बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। आयत ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा तो हंस पड़ा। नहीं, इन पर मैंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, वो इनकी निगरानी करते हैं और ख़तरनाक के साथ साथ मैं हैंडसम भी हूँ, जो तुम्हें नज़र नहीं आता। जावियार ने शरारत की तो उसे देखने लगी जो उसके शौहर का रुतबा पाकर इंतहाई खुश था। इंसान को इतनी भी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। वो उसके खूबसूरत चेहरे से निगाहें फेर कर मुस्कुराहट दबा गई। हाँ बस जलती रहो तुम मेरे हुस्न से। खैर ये बताओ कि तुम्हें निकाह के गिफ्ट में क्या चाहिए? वो गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ता हुआ फुर्सत से आयत से पूछ रहा था। आयत ने कहा, क्या गिफ्ट पूछ कर दिया जाता है? जो देना है अपनी मर्जी से दो। वैसे भी तुमने मुझ पर काफ़ी अरसे से नज़र रखी हुई है, तो मेरी पसंद नापसंद के बारे में जानते भी ही हो। आयत ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय ताना दिया तो वो हंसे बिना ना रह सका। हाँ मेरी जान, मुझे सब पता है, वो बेसाख्ता बोला। तो आयत ने उसके अल्फाज पर उसे घूरा और बोली कि माना हमारा निकाह हो गया, लेकिन इस तरह के फजूल अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और अब आगे देखकर गाड़ी चलाओ। जावियार की नज़र मुसलसल खुद पर महसूस करते हुए आयत ने शर्माकर उसे आगे देखने का कहा, मगर वो उसके शर्माने पर मुस्कुराता रहा। आयत ने आज पहली बार उसके चेहरे पर गौर किया था। जाविया ने आयत से कहा, अब अगर मुझे ऐसे देखोगी तो मैं कंफ्यूज होकर कहीं गाड़ी मार दूंगा, फिर हम दोनों शादीशुदा ज़िंदगी जन्नत में ही जाकर एंजॉय करेंगे। जावियार की बात पर आयत चौंक गई और बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है। आयत ने अचानक फरमाइश की, तुम्हारे ताया ताई ने अपने घर में कोहराम मचा रखा होगा, अभी आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है। वो मामले की नौयत समझता था। तुम निकाह के बाद मेरी पहली फरमाइश टाल रहे हो। आयत ने आंखें दिखाई, मेरी तो जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। जावियार ने उसे समझाना चाहा तो वो मुंह बनाकर सीट से टेक लगा गई। जावियार ने कहा, अच्छा यार तुम मूड तो ठीक करो, और उसने हार मान ली और गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी करके आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। तुम्हें पता है जावियार, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख कर दुनिया को बताऊँ कि मैं यतीम नहीं हूँ। ये कितना खूबसूरत एहसास है ना कि मेरे बाबा जिंदा है और मैं लावारिस नहीं हूँ। आयत का दिल खुशी से भरा हुआ था। तुम लवारिस तो कभी भी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी आजमाइशों का ही दूसरा नाम है। इन हालात में तुमने खुद को मजबूत करना सीखा है। और मैडम तुम सिर्फ अंकल से मिलने पर खुश हो, ये तो बड़ी ज़्यादती है। उसने शिकायत की तो आयत मुस्कुराई। हाँ तो तुम साथ फ्री में चिपक जो गए हो। आयत उसे तंग करने से बाज नहीं आई। अच्छा ठीक है भाई, मैं भी दूसरी तीसरी और चौथी शादी कर लूँगा, फिर सुकून से रहना, क्योंकि मैं तो फ्री में मिला हूँ ना। जावियार ने मुँह के जाविये बिगाड़े तो आयत ने एकदम जावियार की गिरबान को पकड़ा और बोला, ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करना पसंद करूंगी। अच्छा मुझ मासूम को धमकियां देकर डराओ नहीं और गिरबान छोड़ो यार, कोई देख लेगा। हंसते हुए उसने आयत की मिन्नत की तो आयत ने उसका गिरबान छोड़ दिया। आइसक्रीम खाने के बाद जाविया ने पैसे दिए और 5 मिनट में ख़त्म कर दी। वो घर की तरफ बढ़ गए। तवक्को के मुताबिक जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सब लाउंज में बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सबसे पहले जैन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। कहाँ थी तुम? इतनी रात को किसके साथ घूम रही थी? बोलो। जैन उसके करीब पहुंचकर पूरी कुव्वत से चिल्लाया तो आयत ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। अपने बाबा और जावियार के मिलने से आयत के अंदर खुद एतमादी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वो इन दरिंदों के सामने बेखौफ हो गई थी। ताया आयत की बदतमीजी पर गुस्से से खड़े हुए, शरीफ घर की लड़कियां रात गए तक बाहर नहीं रहती, लेकिन तुम्हें क्यों एहसास होगा? तुम्हें तो बस हमारे सर में खाक डलवानी है कि किसी तरह ताया का सर शर्म से झुक जाए। वो उसे डांट रहे थे, ताया जान आप जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद आपका सर झुका हुआ ही अच्छा लगेगा। खैर मुझे आप सबसे बहस नहीं करनी, और बेहतर यही है कि आप लोग मेरे मामला में दखल अंदाजी बंद करें। वो ताया जान को जवाब देते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के सामने ज़बान चलाने की? अपनी औकात भूल रही हो? जैन ने उसे बाजू से दबोचते हुए ज़ोर से धक्का दिया तो आयत फर्श पर जा गिरी। उसका सर फर्श पर लगने की वजह से माथे से खून बहने लगा, मगर वहाँ किसी शख्स ने जैन को नहीं रोका। अब जैन उसका बाजू पकड़कर खड़ा करते हुए उसके बाल मुट्ठी में कैद करके खींच रहा था। छोड़ो मुझे, जानवर हो तुम सब, अल्लाह करे तुम सब मर जाओ। दर्द की शिद्दत से आयत चिल्लाई, मगर वो जैन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और ताया ने कमर पर हाथ बांधे हुए इस नज़ारे को इत्मीनान से देखा, जबकि ताई और मरीम एक दूसरे को देखते मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बाप से बदतमीजी करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? जैन ने उसे दोबारा धक्का दिया तो 2 हाथों ने उसे थाम लिया। आयत ने बरसती आंखों से जावियार को देखा, जो उसे थामे सुर्ख आंखों से जैन को देख रहा था। ओए कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जैन अब जावियार पर हमले के लिए आगे बढ़ा तो जावियार ने आयत को अपने पीछे खड़ा करते हुए एक जोरदार मुक्का जैन के मुंह पर मारा। खबरदार जो आज के बाद इस पर हाथ उठाया, वरना टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अपना तारुफ करवाने की बजाय जावियार ने जैन का गिरबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा तो पल भर के लिए जैन भी उसकी मजबूत शख्सियत से घबरा गया। छोड़े मेरे बेटे को, यह हमारा ज़ाती मामला है। तुम होते कौन हो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने वाले? ताया ने आगे बढ़ते हुए जैन को जावियार की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द मर्द कहलाने के काबिल नहीं होता, इसलिए अपने बेटे को मुकम्मल मर्द बनना सिखाइए, वरना मैं इसका वो हशर करूंगा कि अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। ताया को धमकी देते हुए उसने एक झटके से जैन का गिरबान छोड़ा तो वो गिरते गिरते बचा। अब अगर किसी ने भी आयत पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। आयत जाओ तुम अपने कमरे में। इन्हें खबरदार करने के साथ ही जाविया ने आयत से कहा तो आयत कमरे में भाग गई, जबकि जाविया उन सब पर सख्त
निगाह डालते हुए घर से निकल गया। कमरे में आने के बाद वो काफ़ी देर रोती रही और फिर उसकी आंख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था जब उसे अपनी पेशानी पर किसी का लम्स महसूस हुआ। एकदम उसकी आंख खुली और उसने डर कर आंखें खोली, मगर बल्ब की गर्म रोशनी में जावियर का चेहरा देखकर उसे सुकून मिला। तुम, वह हैरानगी से कहती उठकर बैठी, तो जावियर भी उसके साथ बैठकर फिक्रमंदी से उसके माथे पर बना जख्म देखने लगा। तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने आया हूँ। अपने हाथ से उसका माथा छूते जावियर को दुख हुआ था। जख्म बहुत पुराने हैं जावियर, इतनी आसानी से मरहम कबूल नहीं करेंगे। तुम बस जाओ यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। उसने आंसू पर काबू पाते हुए नजरें चुराई। मैं किसी से नहीं डरता। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? जाविया ने जाने से इनकार किया। तुम्हें तो पता होना चाहिए, कैमरे जो लगवा रखे हैं तुमने। आयत ने कहा तो जाविया ने गहरा सांस लिया। मैं इतना भी बेशरम नहीं हूँ कि बेडरूम में कैमरा लगवाऊँ, और तुम मुझे ये ताने देना बंद नहीं कर सकती। उठकर खुद ही अलमारी खोलकर फर्स्ट एड बॉक्स तलाश करते हुए उसने पूछा तो आयत ने कोई जवाब नहीं दिया। आंखें बंद करके बेड की पुश से टेक लगा ली। मुझे मैसेज मिला है कि ये जैन कल एक लड़की को अगवा करके धोखे से बेचने जा रहे हैं। मैं इसका पीछा करूंगा और उसे गिरफ्तार करने के बाद सबको हमारे निकाह के बारे में बता दूंगा। ये रात तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है, कल से तुम मेरे साथ होगी। डब्बे में से दवाई निकालकर नरमी से उसके जख्म पर लगाते हुए जाविया ने उसे उम्मीद दिलाई। ताया को कब गिरफ्तार करोगे? उसके करीब आने पर आयत ने फौरन अपना गम भूलते हुए जाविया से सवाल किया। वो मेरा काम है, तुम उसके बारे में मत सोचो। पहले सोचा था कि इनको गिरफ्तार करने के बाद ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, मगर इनका जुल्म हद से बढ़ गया और जैन से तुम्हें लॉकअप में सारे बदले पूरे कर लूँगा। उसने कहा तो आयत ने आगे होते हुए उसके सीने पर सर रखा और रोने लगी। जावियर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। सब ठीक हो जाएगा। उसको रोने से रोकने की बजाय जाविया ने तसल्ली दी तो उसके साथ लगे कितनी देर रोती रही, फिर कुछ संभली तो उससे अलग हुई। सॉरी, वो मैं अपनी बेख्तियारी पर वो खौमखा शर्मिंदा हुई। तुम्हारा हक है, और हक लेते हुए सॉरी की क्या बात? जावियर मुस्कुराया, फिर उसे लेटने का बोलता हुआ कहने लगा कि तुम सो जाओ, मैं यहीं पर ही हूँ। उसके सर पर हाथ रखते हुए जाविया ने अपने साथ का यकीन दिलाया तो वो पुरसकून होकर थोड़ी देर में नींद में चली गई और जावियर उसके सोने की तसल्ली करता हुआ कमरे से निकला और सबसे छुपता हुआ वापस चला गया। अगला दिन खुशियां समेटते हुए तुलू हुआ था। वो यूनिवर्सिटी के बाद जब घर वापस आई तो ताई जान के रोने पीटने की आवाज़ें उसके कानों में आई। वो जब लाउंज में आई तो वहाँ जैन के अलावा सब मौजूद थे, यहाँ तक कि जावियार भी सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ताई जावियार के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर रही थी। आप कैसी माँ हैं? आपका बेटा इतना घटिया काम करता था और आप उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे छुड़ाना चाहती हैं। जावियार ने उनका सोया हुआ ज़मीर जगाना चाहा तो ताया का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। जैन गिरफ्तार हो गया है ना? आयत ने जावियार से पूछा तो उसे सर हाँ में हिलाया, जबकि सब हैरत से उसे देखने लगे। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हुआ है? ताया की ज़बान का ताला खुला तो एक मुस्कुराहट ने आयत के चेहरे का रक्स किया। क्योंकि मैं जावियार की बीवी हूँ और उसे मुझे जैन की हकीकत पहले ही बता दी थी। क्यों जावियार, बाकी कहानी तुम उन्हें सुनाओगे या मैं ही सुनाऊँ? उन सब के चेहरे के उठते रंगों से महफूज होते हुए उसने जावियार से पूछा तो जावियार उसके साथ आकर खड़ा हुआ। जब हम किसी की गाड़ी के ब्रेक फेल करवाते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह की ज़ात हर वक्त हम पर नज़र रखे हुए होती है। और जब हम किसी को यतीम समझकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं तब भी हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। और आफाक साहब, आपने तो सच साबित कर दिया है कि पहले खून के रिश्ते होते थे, अब हर रिश्ते का खून होता है। और आपने तो अपने भाई और भाभी का ही खून कर दिया और अपनी भतीजी को इतना टॉर्चर किया, उससे ज़बरदस्ती सारी जायदाद अपने नाम करवाने की कोशिश की। आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। आप क्यों भूल गए थे आफाक साहब कि अल्लाह हर वक्त मौजूद है? वो सिर्फ जालिम की रस्सी दराज करता है, इस रस्सी को छोड़ता नहीं है। जाविया ने इन सब के रोंगटे खड़े कर दिए। ताया हैरत और खौफ के मारे सोफे पर खड़े हुए। आपने अपने भाई को जायदाद के लालच में कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। और जिस लड़की को आप सबने सारी ज़िंदगी यतीम समझकर धुतकारा, वो दरअसल यतीम थी ही नहीं, उसका बाप जिंदा था। जावियार ने बताया तो सबकी आंखें हैरत से फटी। आपके खिलाफ मेरे पास सबूत और गवाह हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने भाई से मिल लें, इसके बाद मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। और ये घर कानूनी तौर पर आयत की मलकियत है, तो वो अगर आपको यहाँ रहने की इजाज़त दे तो ठीक, वरना मिसेज अफाक और मरीम आप दोनों को ये घर छोड़ना पड़ेगा। जावियार बोला तो ताई चक्कर खाकर सोफे पर गिर पड़ी, जबकि ताया के माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। सिद्दीकी जिंदा है? कहाँ है वो? ताया की हैरत में डूबी हुई आवाज़ है। मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा, अभी मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और याद रखिएगा, आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, इसलिए भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जावियर ने उन्हें धमकी देते हुए आयत का हाथ पकड़ा तो आयत खुशी से मुस्कुराई, उसके साथ चल पड़ी। जावियर आयत को लेकर अपने घर आ गया था। उस रोज़ ताया को सिद्दीकी साहब से मुलाकात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और आयत ने मरियम और ताया को इस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि लवारिस होने का गम वो बहुत खूब समझती थी। जावियर उसे बहुत जल्द अपने असली घर ले जाना चाहता था, मगर सिद्दीकी साहब की वजह से उन्होंने कुछ अर्से यहीं रहने का फैसला किया। वो रात बहुत हसीन थी। वो टेरेस में खड़ी आसमान पर चमकता चांद देख रही थी जब जावियर आयत के करीब आया। चांद कितना रोशन है ना आयत? उसने आयत से पूछा। तुमसे कम, जावियर ने कहते हुए अपने हाथ में पकड़े शॉपर से सुर्ख गुलाब के गजरे निकाले और आयत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वो चंद लम्हे में खुशी से उसकी तरफ देखती रही, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। जावियर ने बारी बारी उसकी दोनों कलाइयों में गजरे पहनाए।
तो मुस्कुराई। एक बात तो बताओ, जाविया ने उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए पूछा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जाविया ने सवाल किया तो मुस्कुराहट दबाते हुए आयत कंधे उचका गई। पता नहीं, वो बेनियाजी से कहने लगी। उसने अपना आप जाविया की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा और उससे पूछा, तुम करते हो मुझसे मोहब्बत? आयत ने शरारत से पूछा तो जाविया ने सोचने की अदाकारी की और उसी के अंदाज में जवाब दिया, पता नहीं। उसके कहने की देर थी कि आयत ने उसके सीने पर एक मुक्का मारा और वो दोनों बेख्तियार हंस पड़े। आसमान पर चमकता सूरज भी उनकी मोहब्बत पर पुरसुकून होते बादलों के पीछे जा छुपा, जबकि ज़मीन का हर ज़रा उनके मिलाप पर खुशी से झूम उठा। मोहब्बत करने वाले इतने ही ख़ास होते हैं कि उनके मिलन पर कायनात की हर शय खुश हो जाती है। तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़कता है आवाज़ हम तक पहुँच जाती है। शुक्रिया।